इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चेक मांगना. आई हैव अ क्लाइंट who wanted to invest post election and he was saying that we will do a very big correction. बोला ठीक है भाई, so market दूसरे दिन टूटा, जिस दिन इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट आया election, and he messaged me that see, बोला भाई fantastic, you are, आज तक वो इन्वेस्ट नहीं कर पाया. In 3 months we did, I think so, nearly about 60% outperformance than Nifty 500. इन्वेस्टिंग वाला क्वांट आपने डेवलप किया, उसके कुछ हमको रूल्स बताइए कि आपने कैसे डेवलप किए. So क्या my boss told me once that Ron, we should buy all stocks with 52-week high. फिर हमको लगा कि यार एक रूल से तो कंपनी शायद गलत भी आ जाए. हमने सेकंड रूल डाला. ये समझाइए. हाँ, तो सो हमने 3 रूल रखे एग्जिट के. एक, हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है जो सूरत से आए हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से की थी और आज वो करीबन करीबन 1000 करोड़ का पीएमएस मैनेज कर रहे हैं. तो वेलकम रोहन टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू. टू बिगिन विथ, हमको आपकी जर्नी के बारे में बताइए. कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आप मार्केट्स में आए, एंड हाउ डिड यू एंड अप क्रिएटिंग टोटल वेल्थ, और आज कैसे इतना बड़ा पीएमएस आप मैनेज कर रहे हो. So born in a place called Bhavnagar in in Gujarat, and a place where बहुत बड़ा ship breaking होता है वहाँ पे. That's how it is popular. So never have been into markets, means ऐसा कोई नहीं था. पापा कभी shares वैसे लिए नहीं थे. तो अपने तो वो हम बोलते हैं ना MMP थे, मान मान पास. I recently kept my 10th standard result. It was 59.57, and the best subject I thought that which I have worked very well on is typing. Okay. In our times there were typing as a, our times means मैं इतना भी पुराना नहीं हूँ, पर I had typing in our point. So then we did 12th. Then dad wanted कि भाई एक MBA कर लो तो at least you will get good girl. So so and I thought that I will join my dad's business only because Okay. my dad did join my dada's business. My dada joined my Granddad, great grandfather. father business. We were grain merchants. So but in the in MBA, uh, that was the place where I fall in love with my profession. So I had a chance for selling mutual funds going home to home in Ahmedabad. And there was, at that time, mutual funds was like not a great thing like right now एमबीए it के लिए is. अहमदाबाद ही गए थे. No, MBA I did it from Bhavnagar only, Okay. but in internships, because our super senior was head, Bhairav Choksi was head of Standard Chartered Mutual Funds, which was then bought by IDFC. Okay. So we thought that Bhavnagar के लिए Ahmedabad was like a Las Vegas, Right. with malls होंगे, McDonald's Correct. होंगे, मजा करेंगे. But God had been kind of giving me a straightforward, very strict job. Okay. So I used to sell mutual funds going home and home. It was 2005, Okay. and US 64 just happened. 2001 में हुआ था. Okay. तो म्यूचुअल फंड इक्विटी वाज वेरी बैड एट दैट पॉइंट Right. ऑफ टाइम. मींस इतना खराब था कि लोगों को कन्विंस करना ही बहुत डिफिकल्ट था. एंड Right. दैट टाइम योर इंटरेस्ट रेट्स वे समवेयर अराउंड फ्रॉम 9% to 12%. Okay. सो इट वाज बहुत इजी था लोगों को कि भाई ये पैसा लेके यहाँ पे FD में पैसा डाल दो. एफडी में डाल दो. एंड इट वाज अ टफ टाइम टू लर्न इक्विटीज. और ये जोन, पूरे जोन में अ, पता चला कि ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है. और आई फील दैट आई डोंट हैव अ वेरी हाई IQ. Okay. सो मींस इंटेलिजेंस पर हम हमारे एवरेज इंटेलिजेंस पे है. इतना बड़ा फंड संभाल रहे हो and you are accepting this. या मींस लाइक मैं तो बहुत बीइंग वेरी ट्रूथफुल, बिकॉज इतना इंटेलिजेंट नहीं है, वो पता ही चल जाता है कि आप स्कोरिंग कैसे करते हो स्कूल में, राइट. और इतना IQ था नहीं, पर अभी हमको समझ में आता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस बुक पढ़ने के बाद कि हमारा EQ बहुत हाई Right. था, राइट. सो so when an IQ is not high, your only work is to believe in yourself, do have the right work ethics, and being improved from last day. So consistent ये point पे करते गए. And then MBA, then I went back to MBA. I dated my wife now and then, my girlfriend at that point of time, and I wanted money. So I told my ex boss जो Standard Chartered में भैरव चौकसी थे कि can I get a job. तो fourth semester से I started doing job in Okay. in Bhavnagar, selling mutual funds going home to home. Okay. And I think so that made me a better person on selling side. Okay. And then of course I took a bit loan from my dad कि मैं RPL के IPO में इन्वेस्ट करूँगा. iPod चाहिए था मुझे. And my iPod जो उस समय बहुत फेमस था, हाँ, छोटा मीन्स वाला. फर्स्ट जनरेशन ऑफ
what Steve Jobs brought. Okay. So in the whole segment, what I understood was I took money, lost money. Okay, paisa, I took 50,000 from my dad, and Okay. believe me, 50,000 for a middle class family in 2006 is very huge money, and where your whole family believes कि ये नहीं करना चाहिए. मार्केट में नहीं जाना चाहिए. But stock market is like the worst profession you can think for, right? But I think so, God had a better plan than I had. I never knew what it was. Because see, coming from a very small city, 3-tier city, it was not exposed like today it is exposed with there are a lot of explore point on YouTubes and stuffs like that, like your channel is amazing. हमारे पास था नहीं, तो हमारे पास यही था कि यार पैसा कमा लेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, because we want to earn money. तो we started doing this, and then in the point by losing money I understood that पैसा तो यहाँ से ही बनेगा, जॉब से तो पैसा ना बनेगा. So in that whole zone, then I started. So I used to sell. See, just see that how it works in life. I used Javeri Securities was my client. Okay. Where Javeri was an IFA of Standard Chartered Mutual Okay. Fund. So I used to go them to pitch the product of Standard Chartered Mutual Funds. And Standard Chartered only had 2 funds at that time. Okay. So and we were like very new at that time, Standard Chartered Mutual Fund. So one fine day, late Ashish Ashish bhai told me very beautiful thing that के बेचना ही है या खुद कुछ करना है. And I told that खुद करना है, and I wanted to leave Bhavnagar. I was done with it. So I thought नहीं मुझे करना है. And then I met Harvey Specter of my life. Okay. And that was Hitesh Mali. Okay. Very popular name right now in mutual fund world. And I told that I want to be like him. Okay. So he was Javeri's vice president or something like that, and I wanted to work under him. So then I started Javeri. I was being placed in Surat. Okay. And I started Javeri Security as branch manager. Okay. So दुकान खोलना, ऑफिस खोलना, बंद करना, KYC करवाना, वो सब फ्रेंचाइजी बेचना, all things I did. And in all that stuff, I started to have this love of research. Okay. मैं खुद अपना रिपोर्ट्स बनाता था कि कैसे स्टॉक करेगा, क्या करेगा. And at that time, nobody used to recruit people from small cities for research. Correct. There are all these Morgan Stanleys and Motilals who used to recruit from IIMs and at that point of time. So and research was not very popular job also at that point of time. Means वो खबर चलती थी तब कि ये लेना वो लेना. And at that point of time, I understood that if research makes a huge point, because people are going to pay for what to be bought and what to be sold. So that was the whole journey. And then I did 2-3 more jobs. I had this fascination of working in multinational companies. काम multinational में करना चाहिए, And then I joined a place called ABN AMRO. Okay. Then it was bought by Royal Bank of Scotland. And I understood that it's not a great place. Why so? I felt it is, you don't learn too much into that organization. You're very focused on only one thing, and they are so much, they make you so much comfortable as a person कि आपको फिर ऐसा लगता है यार सैटरडे संडे तो मैं काम ही नहीं करूंगा. And believe me, for a middle class guy who wants to earn, he don't want to rest. Right. So these days I meet people and they say that I want a weekend, and I say, why you want a weekend, man? There has to be a pause. But if you like what you work, means why you want a weekend? But okay, everybody has a different horizon. Right. And then I moved to a amazing place in my life, which I feel that. So I had 2 offers. I still remember 2007. I made good money for myself in trading. वो 50,000 जो आपने हाँ, वो 50,000 तो पापा को दिया ही नहीं. I took as a lucky charm. Okay. तो but I made good money for उसी वो 50,000 को यूज करके you made good money. वो तो जीरो हो गया था. Okay. वो तो जीरो हो गया था. तो फ्रेश कैपिटल फिर कहाँ से? हाँ, so that's an interesting story I missed out. So we stayed in seven people stayed in one room in Surat. Okay. तो सब होते हैं ना, एक में सब बैठते हैं. And then I was the least earning member and the most loud only guy in equity. Okay. So everybody were from ICICIs and HDFCs and all banks. Retail banking वाले बहुत पैसा बनाते थे, बोनस अच्छा आता था. तो हमने उसको पिच दिया. MBA करने का सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि पिच करना आ जाता है आपको. प्रेजेंटेशन बनाना और पिच करना MBA के DNA में होता है. ठीक है. और मैं सबको बोल रहा था तो MBA करना चाहिए because of how to sell the product. So मैंने 7 लोगों को बिठाया और मैंने पिच किया.
see, I feel that India will grow. I don't have money. I have strategy. You give me rupees. So हमारा तब है ना तकरीबन 1200-1500 रुपए कुछ मंथ का रेंट था. Okay. तो मैंने बोला वो मैं आपको पे कर दूंगा. You give me 50,000 rupees. Okay. So this is another 50,000 जो आप ले रहे हो. 50,000 per person you give. अच्छा. तीन लाख That's हो गया. that's my first startup idea, which that was a seed fund I took from people. That I'll give you this much. So I think so. They were very kind. Like I didn't had a plan B honestly if I would have failed, right? But I think so. वो है होता है ना कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता अगेन इट इज अ गुड ऑप्शन. सो आई टुक लाइक 75,000 80,000 रुपीज फ्रॉम 2-3 people. I told I'll pay your rent. So उसको लगा कि यार कुछ नहीं तो मेरा हो जाएगा और ये कुछ ना कुछ. तो my at that time my salary was like 15-20K I think somewhere around. Okay. तो उसको लगा कि यार सैलरी से तो पैसा तो वापस आ जाएगा इसका. And I started trading. So I was telling my that trading account today is the same trading account. Okay. So that has been the journey. But and then I made good money for myself. Okay. In 3 months I gave back, and I was not intelligent. This was 2007-8. 2007, not 8, Okay. 7. Seven. And During the bull run. Same time. Okay. Means it was the just replica what is happening right now. वो 2007 में चल रहा था. अच्छा. I was not smart. I was not intelligent. It was market was smart. So मैं कुछ भी ले रहा था मैं पैसा बना रहा था. So leverage पता नहीं था कुछ भी नहीं था पर I made decent enough money. In 2007 end, my roommate and my very dear friend Tejas used to work with Jainam. Okay. as a research head. So he Right. wanted to move to Mumbai. Okay. So Jainam वाले ने बोला कि आपको replicate करना पड़ेगा किसी को तो ही आप move हो सकते हो. Replicate in the sense strategy. No, you have to replace someone. Okay. And then only you ठीक can है. move to some other company. Right. And Tejas had the point कि एक ही बकरा था उसके पास. He was very kind to give me this offer. So I remember I got an offer from Kuvarji Okay. as zonal head. Okay. And at that time they were paying 50% higher to my last package. Okay. And Jainam offered me 20% discount to my last package. And means it was stupidity, like why you should join a Jainam and why you should not Correct. join a Kuvarji, right? But then Tejas was very kind. He told a very beautiful word कि जिंदगी में ये कर कि तेरी प्रोडक्ट को ले, नहीं कि तू किसी की प्रोडक्ट बेचे. Correct. और मुझे वो बहुत मीन्स वो होता है ना कि एक दोस्त होते हैं जो आपको कुछ बोल जाते हैं जो आपके जहन में रह जाता है. सो ये मुझे ऐसा लगा. एंड देन आई जॉइन जैनम एंड आई थिंक सो everybody told you were stupid to do that. I was stupid to do that. But I wanted, so they were giving me research head job. Okay. And वो सेल्स का जॉब था. तो आपको लेकिन अब जाना रिसर्च में था. रिसर्च में ही था तो मैं तो अपना कीड़ा वहां पे ही था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं 4-5 साल अगर if I will invest in research, I will open up very well. Right. Because research was just 10-20% of my current job. Because then the other criteria was there. But I'll tell you in the whole journey, the most important skill I got is sales. Okay. Which I feel recently the research guy doesn't have the sales skill. Right. Because till you don't know what client wants, how you can generate that product. Right. So in the whole segment in Jainam, then I got a very good platform, super platform. They never had a research team. Okay. And I never had a research experience. Okay. So both were, perfect for each other, right? So I created the whole research team for Jainam, and then we started a lot of things. And 2008 there was a debacle. Right. So सबको मालूम है. सबको means सब खत्म हो गया. Right. मैं जब ज्वाइन हुआ था तब बोलते थे कि लेके भूल जाओ. वो स्टॉक कभी आया ही नहीं वापस. Okay. And now we are talking 2007-8 and today is 2024. How many years? 16 years. 16 years to that. There's certain stocks which has not come still at that price. Means wo long buy and hold and forget is a theory I can never agree to. Means Right. I've seen so much blood in markets. So in 2008 I had a lot of time to do research, and in the same time I met with an accident, a very brutal accident, and I still have rods in my leg. I got this book called Michael Cowell by Trend Following by Michael Cowell, and they said that how quant works in investing and trading. So I thought that the problem with humans are we are emotional. Correct. And we are biased of our last experience. Correct. Right? Very clear. So for example, if you had sold a share and it went up, now your second decision will not be very open for selling a share. Right. Because आपने बेच दिया था तो वो बढ़ गया तो आपका second decision would be नहीं मैं होल्ड कर लूँ क्या. Right.
So if you see from COVID, I'm just relating Mhm. to current affairs, we have only seen V-shaped recoveries. Right. People have not seen L-shaped recoveries, and L shapes are very painful. Because time correction होता है Time उसमें. correction and patience only cracks, it's not the price who Right. cracks, right? So L-shaped recovery किसी ने नहीं देखी है, तो इसीलिए anybody who tells that कि नहीं मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हूँ, बोला आप प्री कोविड हो या पोस्ट कोविड हो? Mostly post COVID. हाँ, पोस्ट कोविड है तो आपने अभी खून नहीं देखा है. Hmm. So it's like, doctor who says that I have not seen blood is not a doctor yet, right? So that was the whole criteria which we started, and we understood that if we can remove the human biasness and only come to the data analysis, we can have an edge to lot of human biases. Correct. And from 2008 to 2024, my whole career or my whole time is only कि मैं कैसे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके बेटर रिजल्ट्स दे पाऊँ. सो अगेन गोइंग बैक टू माय EQ टू बी स्ट्रॉन्गर देन IQ, बिकॉज IQ के लिए आपके पास इतना नॉलेज इंफॉर्मेशन, आज की डेट में इतना इंफॉर्मेशन है, यू गाइस हैव सो मच इंफॉर्मेशन. नाउ टू मेक इट सिंप्लीफाइड एंड व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क फॉर यू इन गुड एंड बैड टाइम्स बोथ, दैट इज वेयर द क्वांट मेक्स अ प्रोसेस. तो पहले हम उसको सिस्टम बेस्ड इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग बोलते थे, फिर प्रोसेस बेस्ड बोलते थे, एल्गोरिथम बोलते थे. आज the word is quant, right? So quant. So the whole career went on to the point that how quant works, and usme there are two divisions what we have understood. One, there are non-negotiable points, Right. like only by companies which are 1000 crore of market cap, a quant. Right. Is it right or wrong? Good thing. Good thing, bad thing, but it is subjective. So it is negotiable. Right. कोई बोलेगा मुझे तो 100 करोड़ की भी बाय करनी है, उसमें भी वेल्थ क्रिएशन हो सकता है. Correct. कोई बोलेगा नहीं मैं तो निफ्टी 50 करूंगा, उसमें भी वेल्थ क्रिएशन हो सकता है. तो दोनों राइट. सो वी देन आफ्टर विल कम टू द पॉइंट ऑफ starting investing quants. We started to understand what are negotiables and what are non-negotiables. Right. So 2009-10, I went to my boss Chirag Bhai in Jainam and told that, boss, I want to start teaching people about process driven investing. Because here the whole picture we found out was, it's not about kya lena kya bechna. It's about the psychology of holding profits and exiting in losses, which are very important, which people at that point of time were not very, very clear about. So ये पूरा process हमने समझा, ये वो. And in 2012, I thought that now I can start for my own. So that is when Turtle Wealth got So हाँ, that is when, अच्छा हमको कुछ पता नहीं था क्या करेंगे. So I thought I had, so देखो यार, जब शादी होती है ना एक मिडिल क्लास की, उसका 2-3 ड्रीम होते हैं लाइफ में. एक घर लेना है, गाड़ी लेनी है, और थोड़े पैसे बैंक बैलेंस में होने चाहिए. और कोई बड़ा मोटा मोटी ड्रीम होता नहीं है मिडिल क्लास फैमिली का, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का, राइट. मेरे पास 2012 में ये तीनों चीज हो गई थी. घर हो गया था, आई गॉट माई लाइफ पार्टनर whom I wanted to marry. I got a beautiful daughter. I had decent money in my bank account. तो मुझे लगा यार अभी बहुत मेहनत हो गई, अभी चिल मारते हैं. तो 2012 I thought that यार जॉब हो गया, I want to start my own. कुछ नहीं पता था. हमको ऐसा लगा कि हम लोगों को सिखाएंगे, like you guys have started, हम लोगों को सिखाएंगे physically. तब टेक वाज नॉट दैट ह्यूज, राइट. फिजिकली सिखाएंगे, उससे सैटरडे संडे पैसा बनाएंगे, मंडे टू फ्राइडे रिसर्च करेंगे, खुद का ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और चिल करेंगे लाइफ में. सो 2012-13 तो हमने चालू किया. इट वाज नॉट ग्रेट टाइम. 14 वी अंडरस्टूड दैट ट्रेनिंग फिजिकली इज नॉट अ ग्रेट मॉडल ऑफ बिजनेस. स्केलेबिलिटी नहीं है, रोज नए क्लाइंट को लाना, उसको कंफर्मेशन देना कि आप पैसा बनाओगे. एंड अंडरस्टैंड दैट 2008 to 14 was not very slow market. Right. Nifty 4000 से 6000, 2008 से 2014 4000 से 6000 के बीच में रही थी. So just imagine there was nothing happening in markets. 50% in 6 years. Nothing means अगर आप CAGR निकालोगे तो it was below the gold rate and FD rates. The whole game changed after Modi ji came into the picture, 2014, right? So 2014, a very dear client came to us and told,
दैट आप क्या क्वांट ट्रेडिंग का बनाते रहते हो, व्हाई डोंट यू मेक इन्वेस्टिंग क्वांट्स। राइट। और उसने मुझे बताया था ला ओपाला में ही मेड 68 टाइम्स मनी, लाओ पला वो वो केटरिंग की जो ये डिशेस आती डिशेस है। बनाती है, राइट। और आई वाज लाइक बॉस, एंड देयर इज नो टैक्स आई हैव टू पे, हम्म, दैट टाइम लॉन्ग टर्म वाज फ्री, फ्री 18 तक फ्री था, 2018 18 तक। तक फ्री था। हमको लगा यार हम गलत जगह पे जा रहे हैं, एंड देन इन 2014 वी स्टार्टेड टू मेक कॉन्ट्स फॉर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग तब साइड। तक हम ट्रेडिंग का कॉन्ट्स बनाते थे, ओके। लॉन्ग शॉर्ट, हम्म। पैसा था नहीं तो वो हम्म। तो ट्रेडिंग का ही कॉन्ट बनाना पड़ेगा। राइट। एंड इन 2014 वी अंडरस्टूड दैट देयर इज अ ग्रेट मैथ अबाउट इन्वेस्टिंग, ओके। एंड धीरे धीरे हमने कॉन्ट्स बनाना चालू किया, हम्म। ये फैक्टर वो फैक्टर ये फैक्टर वो फैक्टर। एंड इन 2018 so we were very first buyer of chemicals, ओके। जब केमिकल साइकिल स्टार्ट हुआ केमिकल था। साइकिल्स चालू हुई हाँ। थी। एंड because my good people, I had always this habit of reading, meeting good traders, तो मुझे ये चीज पता चल गई कि इट्स नॉट अबाउट बाइंग, इट्स अबाउट एग्जिटिंग, विच इज वेरी राइट। इंपॉर्टेंट। सो हम बहुत फास्ट मूवर्स थे फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर। करेक्ट। सो हमने केमिकल ले लिया, और हमने केमिकल बहुत अच्छे टाइम पे हम निकल भी गए। राइट। So we exited in 2018 first quarter, ओके। where the chemical started to dip very राइट, badly, राइट, right? So 2018 we managed very impromptu money, ओके। ऐसे ही फ्रेंड्स एंड फैमिली का, किसी ने बोला कि यार ये कर ले वो कर राइट, ले, राइट। ठीक है। इन 2018 we decided that कि यार should we really manage people's money or not? दिस इज व्हेन आप लाइसेंस के बारे में सोच रहे थे या लाइसेंस आ गया था नहीं, पीएमएस का? हम सोच रहे थे कि हमको पीपल का पैसा मैनेज करना है कि नहीं करना ओके। है, because it's a very big responsibility. Right. अच्छा, I'll tell you a very beautiful incident. So हम तब फीस वीस कुछ चार्ज नहीं करते थे, Right. ठीक है। So one client came to us and told that I'll not invest with you if you don't take fees. ओके। तो हमको लगा यार ये तो उल्टा होना चाहिए, हम्म। पैसा ले तो हम्म। चार्ज करेंगे तो ले लेना चाहिए। राइट। तो उसने बताया कि इफ यू विल नॉट टेक फीस यू विल नॉट ग्रो, you will not have good team, you will have not in good infrastructure, and if these three things are not there, मेरा रिटर्न तो वैसे भी एक्सेल नहीं होगा। एंड दैट स्पार्क्ड अस कि यार ये तो बात बहुत सही है कि हम सेवा करेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड देन आई वेंट टू नियरली अबाउट 10 people, different people who were managing people's fund. ओके। That why, what is a why of managing people's fund? And there were a lot of whys of managing people's fund, and one of the biggest why which I loved was that equity investing is too much personal thing. Right. आप शेयर ले रहे हो, आप शेयर बेच रहे हो, एक्चुअली किसी को पता नहीं चल रहा है, ठीक है। आप गलती कर रहे हो, राइट कर रहे हो, किसको पता है? राइट। किसी को नहीं पता है, राइट। नाउ हु इज अकाउंटेबल फॉर योर वर्क? व्हेन यू मैनेज पीपल्स फंड यू इंप्रूव सो मच एज अ पर्सन कि आपको अकाउंटेबल होने के लिए आपका बेटर सिस्टम प्रोसेसेस होने लगेगा। दैट स्पार्क्ड मी कि यार ये करना पड़ेगा। सो फिर हम व्हाट इज द डिफरेंस कि जब खुद का पैसा मैनेज करते हो तो साइकोलॉजी कैसे वर्क करता है, और जब आप लोगों का पैसा मैनेज करने लग जाते हो तो साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस आता है? आई थिंक खुद के पैसे में आप अकाउंटेबल नहीं होते हो, बट लोगों का पैसा मैनेज करते हो तो आप अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, बिकॉज आप चार्ज लेते हो उससे, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ पोर्टफोलियो मैनेजर और मैनेजिंग पीपल्स मनी मेक यू एज अ बेटर इन्वेस्टर। ओके। व्हाई? बिकॉज आप अगर आप उसका ही रेप्लिकेट करते हो तो जैसे मेरा हाईएस्ट पैसा मेरे ही पीएमएस में, ओके, करेक्ट। तो मुझे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं कोई पहले निकल जाऊँ, ये कर नहीं सकता हूँ। अच्छा, मैंने देखा कि ह्यूमन बायसेस पर्सनल होते हैं तब अलग होते हैं, वो ज्ञान अपने लिए अलग होते हैं और लोगों के लिए अलग होते हैं ज्ञान। तो जब आप एक ही सिस्टम आपके में भी मैनेज करते हो और लोगों में भी मैनेज करते हो तो योर सक्सेस रेशियो इज मच मोर हायर। करेक्ट। और अकाउंटेबिलिटी आ जाती है बिकॉज क्लाइंट बोलेगा कि आप बेकार काम कर रहे हो। पर्सनल में तो कोई आपको कौन बोलेगा, लाइक फॉर एग्जांपल टुडे इफ यू हैव एन एचडीएफसी बैंक फॉर 3 years, इन पर्सनल अकाउंट विल टेल यू दैट इट इज नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन क्लाइंट देखेगा वो तुरंत क्लाइंट बोलेगा कि भाई तू तो बेंचमार्क के परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, राइट। देन इट स्टार्ट्स टू ट्रिगर that what I can bring more on table, and automatically it brings more on table for me also. आप ज्यादा रिसर्च करते हो, बेटर करते हो, बेटर आप परफॉर्मर हो जाते हो। जैसे if I'm playing cricket at my gully, nobody is going to see, but if 50 people are going to see, I have to perform very well. So that's all the और PMS में दूसरा भी क्या हुआ, और एनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पब्लिक हो गए। करेक्ट। तो अभी दूसरा भी है कि you have to be better than someone else. So in 2018 and half or 19 we thought that we will go for PMS. So there were 3 options. One, to go for an investment advisory.
राइट, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चेक मांगना सर्विस के लिए फीस मांगना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, करेक्ट। और परफॉर्मेंस में तो मिल जाता है, हम्म नॉन परफॉर्मेंस में मिलता नहीं है। हम्म हम्म सो हमने सोचा कि ये तो काम करना है नहीं हमको। AIF आई थिंक एट दैट टाइम वाज मच नॉट, अहेड ऑफ द हाँ टाइम, पॉपुलर नहीं था इतना, पॉपुलर नहीं था, एंड क्लोज करेक्ट। एंडेड फंड थे तो हम्म इतना पॉपुलर नहीं। सो आई थिंक सो PMS वाज समथिंग। सो हमने डिसाइड किया कि PMS लाइसेंस मिल जाएगा तो हम मैनेज करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम ऐसा मानेंगे कि हम मैनेज नहीं करना चाहते। राइट, तो फिर चिल है, कंपनी वंपनी कुछ करेंगे नहीं, खुद का मैनेज करेंगे, कहीं पे भी वर्ल्ड में होंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है। राइट, पर वी गॉट द फास्टेस्ट लाइसेंस इन ओके। 2019। आई थिंक सूरत में लाइसेंस भी 3-4 ही है हाँ, अभी। 3-4 ही लाइसेंस थे और हमने लिया। अच्छा, हमको कुछ नहीं पता था हम क्या करेंगे, ओके, कैसे मैनेज करेंगे, कुछ नहीं पता। हमने सोचा आएगा तब सोचेंगे, बिकॉज़ चांसेस ही बहुत कम थे। राइट, बट समटाइम्स यू डिस्काउंट योरसेल्फ, राइट, और यही हुआ। वी गॉट लाइसेंस इन 2019। तब से फिर हमने कॉम्प्लायंस समझा, KYC कैसे करते हैं वो समझा, पिच कैसे करेंगे वो समझा, क्योंकि तब 25 लाख की टिकट साइज थी। किया किया किया, थोड़ा पिच करने लगा, फिर तो कोविड आ गया। सो तब हमने ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट बनाया कि हम ये करेंगे, इसका ये है। सो वी हैव 3 पार्टनर्स इन कंपनी। सो मेरा क्या रोल होगा, मेरी विभाति का क्या रोल होगा, हार्दिक क्या क्या रोल करेक्ट। होगा, क्या टीम में कौन करेगा। एंड 2021, सो 2000 कोविड के टाइम पे तो ऐसा लगा कि गलत डिसीजन हो गया, करेक्ट। क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अभी कौन करेगा, एंड 50 लाख की टिकट साइज हो गई, तो कौन करेगा। बट आई थिंक सो 2021 we understood that this is a serious thing, and we started doing it, and uh, टिल डेट अच्छा till है, date has इज been वेरी गुड। by God's grace. I'll tell you, in this also there is a story. 2021 हमने चालू किया, मार्केट अच्छा रहा, हाईएस्ट फंड came when you perform the highest. करेक्ट, That is a rule of the world, right? And the most biggest drawdown comes when you have the highest fund. ड्रॉडाउन तो जब नीचे गिरेगा तब ज्यादा लोग लेते नहीं हो, नहीं, जब आपका ड्रॉडाउन आएगा फंड में, राइट, जब आपका हाईएस्ट पैसा आएगा, करेक्ट, because people are more confident on you, right? राइट, So 2021 we got very good money, like राइट, 21, 22, and then Russia war came. राइट, So and then things went down. Our quant at that point of time was not that strong, which is right now. Right. And a lot of underperformance started to come, because I never understood this philosophy at that point of time, that my basic dharma of being a portfolio manager is to outperform Nifty 500, राइट, by benchmark. राइट, Right. I thought that for me, जितना प्रोसेस इंपॉर्टेंट है उतना ही क्लाइंट के लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। फिर मुझे वो होता है ना कि कोई आते हैं आपके लाइफ में आपको स्पार्क दिखाने के लिए, एंड आई थिंक सो माय पार्टनर हार्दिक showed me a very good process of a quant mutual funds. That quant mutual fund from nowhere scaled up this because of only returns, and that day I understood a year and a half back that an investor only importance is how much they are earning. Right. That is 80%, rest everything is 20%. Right. So I understood by a very good example. Let us say I went for a movie. That movie has been done by the best director, super process. If I am not entertained for 30 minutes, what I will do? Walk out. I'll walk out. Or maybe a OTT platform. Right. Not entertained, walk out. Right. I don't care how the director has placed the bets. My only point is entertainment. Right. For my investor, the Returns. only bet is returns. Correct. Right. Only bet is returns. That's only he is giving me money for. Right. If market is doing 50, if I have done 70, superb. 50-50, 50, market I have done 50, okay. 30, not acceptable. They will move out money from Right. it. In 2022, we got a redemption of 34.5 crores. Okay. And it takes a lot of time to get that money into the system, right? And we all sat, what is the reason? And everybody had a reason, like, we humans like to give excuses. Right. And I learned at that time that brutal honesty is more better than faking honesty. Correct. So everybody had that कि ये client का ये issue था, ये client का ये issue था, इसको ये निकाल दिया. किसी एक जन ने बोला होगा returns issue है. नहीं, किसी ने नहीं बोला. मैंने बोला the only reason is returns. is we have not outperformed. Correct. Period. और कुछ नहीं है. Correct. Right. And telling this is very hard. So there were
lot of other withdrawals which were in pipeline, Hmm. and I went them to and told everyone that I know you are exiting because of bad returns, Hmm. and I've underperformed. Hmm. Give me 3 months. You can give me 3 months. Hmm. If 3 months I don't outperform, you take out money. Correct. So we all sat and decided that can we do two things. One, can we dream of being the top 5 PMS of India? Hmm. हमारा रैंक तब 100 में नहीं थे. Okay. This is 21 we are talking about. 22. 2. Okay. 22. Just, I think so, it was January 22, January, February 22, somewhere around. और मार्केट इतना बढ़ेगा, रशियन वॉर का जस्ट फीज आउट हो गया था वो 22 आसपास. Sorry, it was 22 and a half later. And can we be top 5? And everybody was like, how can you be top 5? You know, we're not even in 100. Right. Can we think of it? So first we decided we will be top 5. And second we decided we want to outperform benchmark by 50%. Okay. 50%. 50%. Okay. Very big dream. अच्छा वो बोलते हैं ना जहाँ पे चाह वहाँ पे रहा. And okay, that was closed. And it was impossible. Like it was, you know, you're talking like सब बड़े बड़े बैठे ही है. So हमको पता चल गया कि हम AUM में तो बिट नहीं कर पाएंगे अभी, पर हम किस में बिट पर कर पाएंगे, रिटर्न तो अपने कंट्रोल में ही है. So that was we decided. Then every day the only point was that how we can make our quant more stronger. Right. And in 3 months we did, I think so, nearly about 60% outperformance than Nifty 500. Okay. So what we understood was that our biggest, our selection was very right, our review was very wrong. Okay. So Rohan, we'll come to all the questions one by one. सबसे पहले आपने quant setup किया, you got the idea back in 2008-9 and still उसमें changes कर करके आप उस पे stick कर रहे हो. So especially जो investing वाला quant आपने develop किया, उसके कुछ हमको rules बताइए कि आपने कैसे develop किए, क्या क्या वो rules exactly, और कैसे आज भी कोई stock अगर आपके portfolio में आता है तो क्यों आता है, और निकलता है तो कैसे निकलता है. Very. So my boss told me once that Ron, we should buy all stocks with 52-week high. Okay. मेरे बॉस वाज लाइक पहले से वो क्वांट, उसको पता नहीं था वो भी क्वांट वाले हैं, पर वो बोला यार इमोशन नहीं करना 52-week हाई. तो मेरे ना बहुत टाइम से ये जम घुसा हुआ था, और हम भी देख रहे थे कि यार जो स्टॉक, सी इन 2008 व्हेन एवरीथिंग वेंट फॉर अ फॉल, योर FMCG and consumer staples did superb. Right. 2012-13 then auto did very good. Right. 14 capex stocks did too. Right. फिर केमिकल आया, तो कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा करता ही है आपके मार्केट में, राइट? तो so we decided what is non-negotiable and what is negotiable. Okay. So आज तक की बात में हमने डिसाइड किया कि ये 5 रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 1, to buy stocks at all time high only. Okay. Now all time high or 52-week high? All time high. Okay. Why all time high? Because 52-week high तेजी मार्केट में बहुत सारे स्टॉक हो जाएंगे 52-week high में. Correct. और 52-week high is not the right barometer of anything. Right. वो ठीक है, आपको पता चले कि 52-week high है, that's okay. तो फर्स्ट इज ऑल टाइम हाई. अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ ये 10 साल का है जो छोटे छोटे चेंजेस आए. Right. आज की डेट में 52-week हाई विथ अ लॉन्गर कंसोलिडेशन. ओके. सो ये एडेड रूल है, ये एडेड रूल है. Okay. जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टॉक, ऑफ कोर्स नॉट फॉर अ रिकमेंडेशन, जस्ट एंड वी होल्ड आल्सो अ स्टॉक कॉल्ड लेट अस से PFC. Okay. 16 years nothing happened. Okay. From the time listed, and after the 52-week high, all time high, today is 3x higher than 4x higher. all time high से 3x है. So okay. it has to be flat. 15 साल से कुछ नहीं हुआ. One rule. फिर हमको लगा कि यार एक रूल से तो कंपनी शायद गलत भी आ जाए. हमने सेकंड रूल डाला, प्रॉफिट शुड बी आल्सो एट ऑल टाइम हाई. ओके. तो प्राइस हो गया प्राइस P हो गया, और एक और प्रॉफिट हो गया ऑल टाइम हाई. ये सेकंड P. सो फर्स्ट इज प्रॉफिट्स, प्राइस में एक के ऑल टाइम हाई, और पहले लेने से पहले एग्जिट डिसाइड कर लेने का, कौन से भाव से निकल जाने का. तो ये फर्स्ट P. कंसोलिडेशन का भी कोई टाइम फेज था कि 10 साल? वी जनरली सी अ डिकेड. ओके, 10 इयर्स. पर हमने इसका बहुत क्वांट नहीं रखा है, क्योंकि शायद कभी 9 साल का भी कंसोलिडेशन अच्छा मिल जाता है, तो उसका कोई वो नेगोशिएबल है. तो कभी कभी 12-15 साल का मिलता है, पर द बिगर द बेटर.
तो Right. और एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर लो. Right. वन. नाउ सेकंड पी इज प्रॉफिट्स. Right. प्रॉफिट्स तो हमने सोचा कि यार बहुत लॉजिक है फंडामेंटल्स में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, ये देखो, वो देखो, डेट टू इक्विटी देखो, पर व्हाट इज नॉन नेगोशिएबल इज प्रॉफिट्स. Profits. Correct. So what is one thing you talk everything on, and that is profits. So profit should be all time high. Right. Now, very interesting, profit should be all time high, but we added one more thing. Value of that profit company should be higher than the price I am paying. Okay. ये समझाइए हाँ, तो ये है ना, ये थियरी, ये जैसे मैं 2000, I'll give you an example of a company called NCC. We have in our portfolio, again not a recommendation. Doing well right now. हाँ, वो तो ठीक है, इसीलिए एग्जांपल भी देते हैं. Right. वेरी ऑनेस्ट. सो 17 साल से एक ही प्राइस, Correct. बट 17 साल पहले वो उसका प्रॉफिट था डबल डिजिट में, Okay. आज उसका प्रॉफिट है 4 डिजिट्स में. Okay. All right. सो प्राइस आई एम पेइंग ऑफ 2007, Right. but the profit I am getting in that particular of time is nearly about 10x of profit. Correct. So value is over here, price is over here, price will come to meet the value. Right. ऐसे आई थिंक बहुत सारे स्टॉक्स हो जाते हैं जो मार्केट्स ध्यान नहीं देते उन पे, फिर होता क्या है कि वो प्रॉफिट्स इकट्ठा करते जाते हैं एंड देन सडनली मार्केट को रियलाइज होता है अरे इसने तो बहुत प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, इट्स टाइम कि उसका वैल्यू हम सही पॉइंट पे लेके चले जाए. Perfect. So और इतना फास्ट हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है. So हम मैनेजमेंट को मिलते हैं, तो वो मैं लास्ट पी में आऊंगा. तो दिस आर द टू रूल्स. प्रॉफिट ऑल टाइम हाई, वैल्यू शुड बी हायर देन प्राइस, और कुछ नहीं. बिकॉज सी रिटर्न ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए, वेरी नेगोशिएबल. पी कितना होना चाहिए, वेरी नेगोशिएबल. लाओपाला में 50-60 का भी ओके है, हाँ. टाटा स्टील में 10. फॉर एग्जांपल पीएसयू 3 के भी पी में नहीं चल रहे थे, हाँ. और कोई स्टॉक मींस लाइक द बेस्ट एग्जांपल इज ट्रेंट at 70-80 times also it has been the most consistent stock. Correct. Right? So P is negotiable, but profit is non-negotiable. Profit hoga to everything is there. Lastly, we made a P is that understanding better company by meeting people and management. Okay, so P, third P is people. Okay. So ये तो वही है कि हम लोगों से मिलते लगे, किसी ने बोला भाव इंपॉर्टेंट है, किसी ने बोला प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट, किसी ने बोला कि नहीं यार कंपनी को मिलके ही पता चलेगा. तो हमने तो तीनों का मिक्स कर दिया. अगेन लो IQ हाई EQ, राइट, नेवर फॉरगेट. और तीनों में आपका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्वांट का इंपॉर्टेंट. क्वांट का I am zero right now in decision making process. Right. I don't want to decide only. So in between I'll tell you a very important beautiful thing. Why ETFs are so amazing? Because they don't decide. Fund manager doesn't decide that Reliance को कितना परसेंटेज देना. So हमने सोचा can we replicate a quant model as an ETF? Right. खराब कंपनी फ्लश आउट हो जाएगी, अंडर परफॉर्मर परफॉर्मर इन हो जाएगी, ठीक है. बट ETF का जो नेगेटिव है वो भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं. जैसे ETF निफ्टी 50 का ETF है, वो रिलायंस को बाहर नहीं निकाल सकता है, पर हम तो निकाल सकते हैं, नहीं ले सकते हैं. प्रॉफिट शायद ऑल टाइम हाई पे हो गया. हाँ, वो रिलायंस शायद फॉर एग्जांपल कोई भी हिसाब से हमारे में नहीं आ रहा है, पर उसको तो लेना पड़ेगा बिकॉज मार्केट कैप में रिलायंस इज द बिगेस्ट, राइट. तो उसको लेना पड़ेगा. सो व्हाट वी डिड वाज ETF का पॉजिटिव्स वी ऐड एंड ETF का नेगेटिव्स वी टर्न इनटू आवर फंड एज अ पॉजिटिव. इफ वी कैन डू दैट, that can be the most beautiful fund. So ये पूरे प्रोसेस में पी आ गए तो क्लाइंट को आप स्कटल बट करो, डिस्ट्रीब्यूटर को मिलो, कंपनी को मिलो, सबको मिलो, और धीरे धीरे यू कम टू अ पॉइंट दैट रियली दिस कंपनी इज टर्निंग अराउंड. राइट. बिकॉज समझो 15 साल से ये कंपनी चली नहीं है, प्रॉफिट इसका 4-5x बढ़ गया. तो क्या हो रहा है कंपनी में जो टर्न अराउंड हो रही है कंपनी. नाउ टर्न अराउंड कैन बी विद 2 फैक्टर्स. एक तो कंपनी में कुछ बहुत अच्छा काम हो रहा है, राइट, कि भाई ब्रिलियंट, ये कंपनी कुछ नहीं कर रही थी, वहां से वहां हो गई. या तो जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली पावर कंपनीज, कंपनी तो अच्छा ही कर रही थी, पर पावर में डिमांड के हिसाब से लास्ट 2 साल में सबका टर्न अराउंड हो गया. तो एक तो सेक्टर री रेटिंग होता है, या तो फॉर एग्जांपल कंपनी ने री रेटिंग अपने आप को किया. पूरा सेक्टर ही आई थिंक 50-100 के बीच के मल्टीपल पे चल रहा है. हाँ, 50 पहले जो मिलता था आपको पावर, क्या मिलता था, कुछ कोई, मैं बताऊं स्टोरी. वी हैव अ कंपनी कॉल्ड वॉल्टर इन आवर पोर्टफोलियो. At 2500 crores of market cap, it was 1800 crores of reserves. 1800 crores of reserves. Okay. हम मैनेजमेंट को मिले, मैनेजमेंट बोले कि पता ही नहीं, हमारा स्टॉक ही नहीं चलता है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है स्टॉक में, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं चलता नहीं. 16 साल से एक ही प्राइस, प्रॉफिट बढ़ गया 8x.
16 साल में 16 साल में Okay. 8x प्रॉफिट बढ़ गया, 30-40% के अगर जीरो profit डेट, बढ़ रहा है कुछ नहीं, ठीक है। आज दिस कंपनी इज एट 13-14,000 रुपीज और व्हाटएवर इट इज, टुडे दे आर सरप्राइज कि स्टॉक इतना बढ़ क्यों रहा है। and you know, in meeting the management, one thing we understood is that actually management को भी बहुत कुछ पता होता नहीं है। अपने को लगता है कि मैनेजमेंट को बहुत पता होता है, बिकॉज विजन तो उसको भी इतना बड़ा नहीं है ना कि क्या होने वाला है। सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स वेयर वी मीट मैनेजमेंट। सो नाउ व्हाट वी डू राइट नाउ इज दैट हम उसको पूरा कॉन्ट मैनेजमेंट को ईमेल लिखते हैं कि आप पूरा कॉन्ट से आपकी कंपनी क्यों आई है, इसीलिए हम आपको मिलना है। और हम एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, सो व्हाट इज टर्निंग अराउंड, with then of course whatever on the platform whatever Right. they can say. और जैसे पावर में आप मिले होंगे तो some of the management must have said कि the demand is turning around. Demand is turning around, superior order book आ रही है, पर order book I'll tell you order book was good in 21-22 also, Right. but sometimes you don't know when it is going to turn around. So you have आज हम power बोलते हैं, I was just telling to one of my friend, 2021 we are sitting right now, will we have a bit of point that PSU will turn around? I don't think so. Will we think of that capex story will be so good? It's very tough to say because at that time all the OPEX companies and quality companies were doing better than अपनी ये सब companies. आज quality companies कुछ कर ही नहीं रही है. So that's where the quant comes into the picture के आपका emotional side को side कर दे. So in 2021 हमारे portfolio में था Reliance, HDFC Bank, Asian Paints, Pidilite, HDFC, bank नहीं, HDFC, TCS. Today we don't have any stock. Correct. क्योंकि कौन ने उसको फ्लश आउट कर दिया और पूरे PSU को फ्लश इन कर दिया। Okay. तो शुरू में आपने बोला कि जब एंट्री लेते हो तभी आप एग्जिट डिसाइड करते हो। हाँ। तो वो एग्जिट का क्या रूल है? मेरा है ना, मैंने बहुत खून देखा है, जैसे मैंने वो बोला, मुझे ना बहुत डर लगता है। मैं आई टेल दैट आई एम द मोस्ट फट्टू फंड मैनेजर ऑफ इंडिया मे बी, बिकॉज मुझे पता है कि प्रॉफिट होल्ड करना वो कैपेसिटी आपकी बड़ी हो तभी हो सकती है जब आप लॉस को एग्जिट कर सकते हो। करेक्ट। मैं प्रॉफिट में आई टेल यू दिस स्टोरी ऑफ वॉल्टेम बिफोर कमिंग टू एग्जिट, 2500 to 14,000, it's like 5.5x. We have not sold a single share. Okay. No trimming, no profit booking, nothing. Okay. Because I have the capacity to hold great good stock, because I have very strong capacity to exit bad stocks. Okay. So हमने क्या सोचा कि यार 3 टाइप के एग्जिट होते हैं। एक के भाव से टूट गया तो एक खत्म ही हो गई बात। सो हमने 3 रूल रखे एग्जिट के। एक कि अगर स्टॉक लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे चल रहा है टेक्निकली, 200 DA में हम बहुत सारे मूविंग एवरेजेस के, सो ये एक नॉन नेगोशिएबल पॉइंट है जो वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं 200 डेज, जो जनरली एक साल की एवरेज हो गई आपकी, राइट। एक दूसरा, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट से डिप हो गई कंपनी। ओके। बिकॉज़ ऑल टाइम प्रॉफिट जो यूज करते हो वो क्वार्टरली होता है? TTM 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स, ओके, यानी 4 क्वार्टर का लास्ट कंबाइंड। सो TTM से वो ड्रॉप हो गया प्रॉफिट। ओके। सो ये भी है कि भाई प्रॉफिट भी ड्रॉप हो गया। सो फर्स्ट बिलो एवरेज आया, ऑल टाइम हाई से ड्रॉप हो गया, और तीसरा उसने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करना चालू कर दिया। तो वो अगेन प्राइस प्रॉफिट्स एंड पीपल मींस वो वही पॉइंट है, राइट। अच्छा, मुझे कुछ स्टोरी नहीं सुननी है कि ये तो कल उठ के बढ़ेगा। सो 2 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक है होते हैं इफ दिस, राइट, ये कल उठ के ये लाएगा, ये लाएगा, ये लाएगा। ये बहुत बढ़िया है जब आप अपना पर्सनल इन्वेस्टिंग करते हो। मैं इज पे हूं, आज अच्छी है तो कल अच्छी होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज इफ आई टेल दैट, I'll tell you an example of L&T. 15 years L&T was, 14 years L&T was at same price. Let us say I would have invested in 2010 in L&T, 2020, my client would not be with me. Correct. Client wants return, they don't want story. Correct. Story 3 महीने चल सकती है, return is the, you know, the report card of you. So ये पूरे प्रोसेस में when you manage the PMS, clients को कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत ज्यादा buy sell कर रहे हैं? No, so our quant, the beautification of our quant is that our churning ratio is least. Okay. Because आप समझो कि let us say I am holding a Mahindra & Mahindra or a Bajaj Auto from last 2.5 years. Right. मेरे क्वांट में वो सेलिंग तभी आएगा जब ये 3 फैक्टर मैच होंगे। Right.
एक तो लॉन्ग टर्म एवरेज तोड़ा, हाँ तो भाई टेक्निकली खराब हो गया। राइट प्रॉफिट डिप किया तो फंडामेंटली कुछ खराबी है, हम्म और अंडर परफॉर्मेंस आया। हम्म ये तीन नहीं होगा तो स्टॉक बिकेगा ही नहीं। सो अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स आप कैसे देखते हो? फॉर एग्जांपल अब लोग अभी अप्रैल में जो जून क्वार्टर फिनिश हुआ, तो जून क्वार्टर से पिछले 12 महीने का 12 कुछ बना महीने का होगा, तो नेक्स्ट क्वार्टर जब फिनिश होता है अगस्त सितंबर हम्म, में, तो सितंबर में जो नया टीटीएम बनता है वो वो टीटीएम फ्लश आउट, पीछे वाला फ्लश आउट हो जाता ओके है। ऑलराइट हाँ, तो इट्स अ टीटीएम। ओके सिर्फ ये क्वार्टर में हम देखते हैं, जो ये फर्स्ट हम्म क्वार्टर है उसमें हम उसको 2023 के रिजल्ट से देखते हैं, ओके बिकॉज ये फर्स्ट क्वार्टर ही है तो वो टीटीएम बना नहीं, वो राइट 4 क्वार्टर का देख के। राइट और इसमें एक चीज है जो फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं आफ्टर द वीडियो, इज हम्म दैट हम उसमें एक्सेप्शनल आइटम्स और अदर इनकम्स को माइनस प्लस कर देते हैं। ओके ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए सो बहुत टाइम क्या होता है, क्योंकि बहुत बड़ी इनकम, अदर इनकम आ गई होती है हम्म कंपनी में, राइट ओके तो प्रॉफिट बढ़ जाता है प्रॉफिट बहुत राइट सब्सटेंशियली बढ़ जाता हम्म है, या तो फॉर एग्जांपल एक्सेप्शनल लॉस आ गया होता है राइट कंपनी तो में उसको के, हटा देते हैं और उसको हम माइनस कर देते हैं। राइट अच्छा, कोई कंपनी होती है जिसका काम ही अदर इनकम से आता है, हम्म जैसे फॉर एग्जांपल आप यूएस में देखो, अमेजोन देख लो, हम्म या तो फॉर एग्जांपल आप निप्पॉन इंडिया देख लो, हम्म तो उसका बहुत सारा पैसा वहां से अदर इनकम से हम्म आता है, तो वो फिर हमको देखना पड़ेगा कि राइट अदर इनकम भी है, तो फिर आप मर्ज कर दो। राइट पर ये यहाँ पे थोड़ी टेक्निकलिटी आती है, हम्म आप एकदम ब्लाइंड नहीं फोल्ड हो सकते हो। जैसे रेमंड रेमंड ने एक्सेप्शनल वो जो लैंड बेचा, वो अपनी सॉरी अपनी कंज्यूमर ब्रांड बेची, हम्म उससे बहुत पैसा आ गया, राइट तो वो सस्टेनेबल पैसा तो नहीं आने वाला राइट है, वो राइट एक बार के वन लिए है, टाइम था तो फिर वो उसको माइनस कर दो। करेक्ट तो वो बहुत देखना जरूरी है। पर अगर ये तीन फैक्टर मैच हो जाते हैं, दूसरा इससे क्या होता है, आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस इतना स्ट्रांग हो जाता करेक्ट है कि आप यस बैंक ले ही नहीं पाओगे। राइट क्योंकि प्रॉफिट्स वाला क्राइटेरिया ही नहीं नहीं आएगा भाई भाभी, ऑल टाइम हाई नहीं है, अच्छा राइट आप वोडाफोन ले ही नहीं पाओगे, करेक्ट तो आप सिर्फ विनर्स के साथ रहोगे। राइट हाँ, इसमें ईज वाले ही आएंगे, इफ वाले नहीं आएंगे। करेक्ट सो लेट अस से इन बैंकिंग वी डोंट हैव एनी प्राइवेट बैंक टुडे, ओके बिकॉज कोई ये फैक्टर में आता ही नहीं है, राइट प्रॉफिट फिर भी आ जाए तो प्राइस तो नहीं आ रहा आउट परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है है। राइट सो इन क्वांट ऑफ सिलेक्टिंग, फर्स्ट इज ऑल टाइम हाई, राइट second is all time high profit, हम्म third is outperformance of benchmark. ओके This is the biggest learning I have learned in last 1 year, करेक्ट that आउट परफॉर्मेंस नहीं हो तो वो स्टॉक मेरे लिए काम का ही नहीं है। राइट So, for example, let us say an A stock, Hmm. which is super fundamental, Hmm. amazing company, Hmm. but it is not outperforming my benchmark, then it is not a good stock for me. राइट That can be great for a lot of people, but as a Right. portfolio manager, it's not great for me. Right. And actually, as an investor, also, it's not great for you because it's not outperforming Right. markets. Fourth, value should be higher than price, and Hmm. fifth, turnaround story. करेक्ट ये पांच का मिश्रण हो तो ही मेरे में स्टॉक आएगा। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ परफेक्ट क्वांट। Hmm. उसमें एक भी चीज जो तो नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं है कि हाँ ये आएगा तो ये आएगा, ये आएगा तो ये Hmm. आएगा, और ये पांचों पांच चीज नॉन नेगोशिएबल है। Hmm. और हमने सिर्फ इसमें एक चीज डाल दिया, बिकॉज ऑफ नाउ फंड साइज इज Hmm. बिगर, वी ओनली बाय नाउ निफ्टी 500 स्टॉक्स। ओके तो लार्ज कैप स्टॉक्स नॉट लार्ज कैप लार्ज मिड कैप स्टॉक्स स्मॉल भी आते हैं ना, Small भी आज 5000 करोड़ की Okay, एवरेज right. नीचे की साइड हो गई राइट है, राइट और बिकॉज यू नीड वॉल्यूम टू बाय एंड देन टू सेल, राइट देन तो टू एकदम सेल। स्मॉल में चले गए तो अपने बाइंग सेलिंग से मूवमेंट्स आ जाता है It's too now. If you're buying, like, as the fund size will grow, it is going to be a very big challenge as a liquidity point of view कि यहाँ पे हम आए। दूसरा, एक निफ्टी 500 हो जाता है तो एक आपका यूनिवर्स भी बन जाता है, क्योंकि हमको लेना है सिर्फ 15 स्टॉक, और बेंचमार्क भी डिफाइन करना इजी हो जाता इजी है हो जाता है। करेक्ट हमको लेना है 15 स्टॉक ही, राइट तो 15 स्टॉक लेना है तो उसमें क्यों हमको, देखो निफ्टी 500 के बाद प्रैक्टिकली फिर पूरा यूनिवर्स ही है आपके राइट पास, राइट एंड इन दिस टाइम ये 5 सेगमेंट में बहुत सारे स्टॉक आ जाते हैं। राइट So then you know also that you are buying some good quality, Mhm. you know the business very Mhm. well, and believe me, investor don't want big returns, they want consistent and safe returns. राइट क्योंकि उनका बीपी ऊपर नीचे हो जाता हाँ, है तो उसको जैसे फॉर एग्जांपल अच्छी कंपनी हो और शायद तक थोड़ा कम रिटर्न हो, तो उसको ऐसा लगे नहीं यार कंपनी तो, आई नो दैट कंपनी, हम्म, कंपनी थोड़ी पता नहीं हो हम्म, तो उसको हर बार डाउट लग जाएगा कि ये टूट जाएगी तो। So we have understood that mix very well. That client don't want too much of heavy risk in their portfolio. Client want consistent, हम्म, client want better returns, हम्म, and client want that कि भाई
मुझे कोई साल में 150% और दूसरे साल 50% का ड्रॉडाउन नहीं चाहिए मुझे. राइट. इफ यू डू कंसिस्टेंट आई एम वेरी हैप्पी विथ यू. इसी में फॉर एग्जांपल जब आप एंट्री के तीनों फिल्टर्स डालते हो, प्राइस के, प्रॉफिट्स के, कंसोलिडेशन के, सो एट दैट पॉइंट आई एम वेरी श्योर कि केवल 15 स्टॉक्स नहीं आते होंगे यूनिवर्स. बहुत आप सारे स्टॉक आपके स्क्रीन होके 25 स्टॉक्स 50 स्टॉक्स भी आते होंगे अच्छे रन्स में. इट कुड गो टू 100 या आल्सो. तो फिर वहां पे आप वो टॉप 15 को कैसे सेलेक्ट करते हो, गिवन आपको पोर्टफोलियो तो 15 स्टॉक्स से ही बनाना है. सो जो हमने 2021 में हमने मिस्टेक की थी वो हमने बहुत ओमिट कर दी यहाँ पे, क्योंकि हम इतना तब स्ट्रॉन्ग क्वांट्स नहीं था हमारा. Okay. हमारा ऑल टाइम हाई था प्राइस, पर हम इतना बड़ा कंसोलिडेशन नहीं देख रहे थे. Right. एक हमारा प्रॉफिट का टीटीएम नहीं था. Okay. हम ईयर ऑन ईयर देख रहे थे. Okay. और आउट परफॉर्मेंस नहीं था. Okay. तो ये तीन जब साथ में होते हैं, बिलीव मी, आज निफ्टी 500 के ओनली 30-40 स्टॉक्स कम्स इनटू द पिक्चर. बिकॉज आप देखो, आपको तीन फैक्टर लाना है, और दूसरा कि प्राइस शुड बी हायर, वैल्यू शुड बी हायर देन द प्राइस. तो बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि स्टॉक इज डूइंग गुड, पर उसके सामने वैल्यू भी आपको मिलनी चाहिए. तो ये 4 फैक्टर को मिला दो, तो आज हमारे पास 2 पोर्टफोलियोज है, तो वी हैव 30 स्टॉक्स. और प्रोस्पेक्ट में शायद 10 स्टॉक और होंगे. बाकी स्टॉक आना बहुत. तो हमारी टीम बोलते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक आना, उसने बहुत अच्छा काम किया होगा तो ही स्टॉक आ सकता है, क्योंकि अब कहीं पे तो अटक ही जाएगा. समवेयर अराउंड इट विल हैव अ फिल्टर, क्योंकि 3 इतनी स्ट्रॉन्ग क्राइटेरियाज है. हाँ. तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टॉक भले अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, बट प्रॉफिट्स नहीं होगा. प्रॉफिट्स होगा तो परफॉर्म नहीं कर रहा होगा. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटकेगा, जिसकी वजह से आपका यूनिवर्स yes 30-40 स्टॉक्स का बन जाएगा. and we are very happy. I'll tell you why. Because what happens in good markets, like what is currently we are talking today at all time high markets, every day there are new stocks. Right. और इतना बड़ा, believe me, the biggest problem with a fund portfolio manager or an investor is FOMO, fear of missing out. Quant आने के बाद we have COMO, that is courage of missing out. courage of missing out. कि ठीक है यार, अपने सेटअप में नहीं आता है, मिसिंग आउट. हाँ, इसमें होगा कि 3-4 कंपनीज बहुत अच्छी होगी जो चली जाएगी, बट ऐसा आप सबको तो कुछ ले ही नहीं पाओगे यार. ठीक है, वरना तो फिर आप 50 स्टॉक ले लोगे तो पीएमएस का मतलब ही क्या है? देन यू नीड अ फोकस पोर्टफोलियो. म्यूचुअल फंड हो गया. सो व्हेन यू हैव एटलीस्ट, सो हमारा रूल है कि 15 स्टॉक में द फर्स्ट 5 स्टॉक शुड 50% ऑफ पोर्टफोलियो. ओके. द second 5 stock should be 30% of portfolio, and the rest 5 stock should be 20% तो of 10 portfolio. 10%, 6 and then नहीं, it's not necessary that it should be 10 अच्छा, 10 उसमें भी अलग अलग होगा. इसमें भी बहुत अलग अलग हो गया है, because allocation is the whole game. तो allocation is again quant based या फिर आप pure quant. Okay. कुछ, so why we are again putting a point is that because we are humans. एक दिन मुझे बहुत अच्छा लग गया. जैसे I'll tell you 2 things which I have learned in this journey is, one, never think opposite to the trend. Right. ऊपर जा रहा है तो मंदी का मत सोचो, नीचे जा रहा है तो तेजी का मत सोचो. तो फिर मंदी ही सोचो जब रिवाइवल तब तक नहीं आया तब. लॉट ऑफ मनी इज बीन वेस्टेड और नहीं बनता है उल्टा सोचने से. करेक्ट. वो वैल्यू पिकिंग लोग सोचते हैं कि मैं वैल्यू पिकिंग लगता है बहुत सेक्सी. अभी आप सोचो पूरा 25 रूम का रूम है और आप सोचो कि कोई आके बोलेगा कि नहीं मार्केट ड्रॉप हो जाएगा. ही वुड बी हर्ट द मोस्ट एंड पीपल वुड लाइक टू हियर हिम और हर, बट दैट पर्सन ऑपोजिट साइड हैज लॉट ऑफ पेन. बिकॉज अगर वो तेजी में घुस गए और वो पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो वो उसने भी वो बहुत बड़ा मिस कर दिया. बहुत लोग बोलते हैं कि हम 50% कैश पे हैं. तो आज की डेट में कैश भी बहुत बड़ा पेन है. Right. क्योंकि एवरी डे योर स्टॉक इज गोइंग अप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी है. तो बोले हम नीचे आएंगे तब लेंगे. सो आई हैव अ क्लाइंट who wanted to invest post election. Okay. Right. And he was saying there will be a very big correction. बोला ठीक है भाई, I'm not a soothsayer, so I don't know. So market दूसरे दिन टूटा, जिस दिन election आया. And he messaged me that, see, बोला भाई fantastic, you are, आज तक वो इन्वेस्ट नहीं कर पाया. So he has been very smart, but smartness is not the result of your wealth creation. Right. Because invest in next day से revival हो गया. He thought कि फिर से टूटेगा, फिर से. अभी देखो उसने बोला कि इलेक्शन के बाद तो आप, सॉरी, बजट के बाद तो आप शॉर्ट देख लेना. चला गया. अच्छा, now again there was a tax rise,
he messaged me, see now. 2018 में भी टूटा था टैक्स रेस के टैक्स बाद। अभी तो देखना, अभी देखो, अभी आप सोचोगे आज 25,000 मार्केट आ गई निफ्टी, आज 10,000 10% करेक्शन भी हो गया मार्केट, तो यू आर टॉकिंग द सेम वैल्यू व्हाट यू हैड इलेक्शन के इलेक्शन के, तो देन देयर इज नो फन ऑफ बीइंग प्रेडिक्टिंग द Right. मार्केट्स. वन रूल, थिंक प्रेजेंट, थिंक ट्रेंड. दिस इज, आई हैव केप्ट अ रूल. तो इन आर क्वांट पूरे सिस्टम में कैश कॉल्स कभी होते ही नहीं हाँ, है, बहुत सारे होते हैं. होते हैं। सो कैसे? इफ द स्टॉक इज नॉट मीटिंग, हमारा एग्जिट कॉल आ गया हम्म, तो बहुत टाइम पे हम कैश पे आ जाएंगे. ओके, और फिर जब तक एंट्री कॉल नहीं आ रहा है तब तक। And every 10 to 15% of correction, हम्म, the new sector pops. ओके Always, this is a rule. ओके So if you see after the Russian war, Russia-Ukraine, auto came first. करेक्ट। I still remember Mahindra and Mahindra were the first to do an all-time ऑटो high. ऑटो एंसिलरी। Auto ancillary, but still auto did much more better, Better. right? Auto कहीं पे नहीं था 7 साल में, हम्म, and auto started to revive, right? So look at what has happened to auto till today. It has been consistent. But वही time पे there was one sector which did fantastic before, it never did again back, like private banks. करेक्ट। कुछ नहीं हुआ. So every time there is a 10 or 15% correction, see which sector is doing an all-time high, राइट। and that's where the biggest pick starts to come. जनरली इन योर एंटायर इन्वेस्टिंग जर्नी आपने ये चीज़ नोटिस की है कि कोई स्टॉक अपने सेक्टर को पीछे नहीं छोड़ता है, मतलब जब कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है तो मोस्ट लाइकली उसी सेक्टर के सारे ही स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। इज इट ट्रू? Fairly right, but कितना proportionately अच्छा करते हैं वो बहुत subjective है. ओके। I'll give you an example. Hmm. Because we have 28% allocation in auto in our fund, so that Right. is the reason. Let us say Nifty Auto. Most of stocks have done fairly well, right? But there are certain stocks which has not done good. Like for example, if you see iShares, in comparison of it, it has not done very well. Right. If you see Hero Honda, sorry, Hero, हीरो। आज भी हीरो होंडा हाँ. आ जाता है. So Hero has not done that fantastic. But सामने a fourth largest two-wheeler maker, TVS Motor, डूइंग वेल। has done more better than the Correct. than the largest automaker, right? Two-wheeler maker. उसका एक इंडिकेशन क्या है पता है? Who does the first all-time high? Right. Because the smart money will be invested in the most brilliant company. So generally एक ट्रेडिशन क्या होता है, people start to find कि TVS तो बहुत चल गया है, अभी मैं उसका लेगार्ड ले लेता हूँ. लेगार्ड नहीं पैसा बनाता है. वो जो विनर होता है वही ज्यादा पैसा बनाता है. Like for example, in that case, I'll take an example of four-wheeler में Mahindra and Mahindra. So if you see Mahindra and Mahindra, Tata Motors, then your दूसरी मारुति, ये सब ने इतना पैसा नहीं बनाया जितना महिंद्रा एंड महिंद्रा बनाया. महिंद्रा महिंद्रा was the first all time high of auto. TVS Motor was the first all time high of two-wheelers. Correct. So if you find that first timers, so I'll tell you in PSU, let me ask you, you know which was the first all time high of PSU? Punjab National Bank. No, PSU as a unit, not banks. ONGC. ONGC did recently. No idea. The first PSU was Power Grid. Oh, okay. The first PSU was Power Grid. And when we bought Power Grid, my team told me, क्या ले रहे हो यार, क्या है? And that time there was 8% of yield, 7% of dividend. मैंने बोला यार कुछ नहीं तो, because हम कितना कैश पे बैठे थे, हमने सोचा कुछ तो ले, तो 7% तो आ जाएगा. Today I see that stock, it has not given a 15% of downside. Okay. Consistent all-time high. New all-time highs. New all-time high, new all-time high, new all-time high. Consistently outperforming the benchmarks. अच्छा, बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस भी नहीं है, but consistently outperforming. वो हर क्वार्टर 2-2% भी कर रहा है तो साल का 10% हो जाता है. And see, in your portfolio, you don't want everybody to be a hero. Somebody you want to be a middleman who will just balance your team. Off the camera, हम जडेजा की और अक्षर पटेल की बात कर रहे थे. हाँ, so Jadeja is my favorite, right? So like in World Cup, Jadeja has not outperformed superiorly, but Akshar Patel has done, right? But so middle होना बहुत जरूरी है. So your middle team is the main team. Openers तो आपके है ही, तो वहां पे ये सब कंपनीज बहुत काम करती है, बिकॉज जब मार्केट टूटता है तो ये सब कंपनी आपको टूटने नहीं देती है इतना. सब आपको हीरोज नहीं चाहिए,
Certain times you want something which is consistently धीरे धीरे outperformer in your portfolio. So that is where I think so power grid. I'll tell you one more area where infrastructure. Who did first all time high? L&T. L&T. Right. L&T. I got the answer because आपने L&T एक client के साथ discuss किया था. L&T. You see the first all time high was L&T, and recently the sector we are seeing is oil. Okay. The first all time high was Oil India. Okay. It was not Reliance with an outperformance. Right. So maybe Reliance का business diversify of हो course, गया because है. now it is divided between 3-4 categories. Categories. So of course we cannot say Reliance purely onto oil. Right. But yeah, like for example now ONGC has come, but Oil India being a second leader, emerging leader, has outperformed a leader. Okay. So that's where you can pick up the great stories. Of course, with an all-time high profits. Right. So I think that made a lot of sense. खाली एक point मुझे और समझना है, and this can be the last question also. As an individual investor, say for example कोई 10-20 लाख manage कर रहा है खुद का ही, so bit of knowledge है, थोड़ा बहुत knowledge है market का, PMS afford नहीं कर सकता है क्योंकि given the criteria 50 लाख है. So in that case, what should he do? Yeah, so see, I'll tell you that एक तो पहले तो decide करना है कि आपके पास इतना समय है कि आप इतना इन्वेस्ट अपना वो कर सकते हो. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. अच्छे टाइम पे it is not your intelligence which is outperforming, it is your luck which is outperforming, right? बुरे टाइम पे आपको पता चलेगा कि रियल आप कितना कर पाते हो. तो अगर आप इतना टाइम दे पाते हो तो ऑफ कोर्स यू शुड डू, उसमें कोई डाउट ही नहीं. अगर आपका रूल्स बेस आप बना दो तो आपको करना चाहिए. अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स यू कैन पुट इट इनटू अ म्यूचुअल फंड्स. नाउ सेबी इज कमिंग विद अ वेरी गुड कैटेगरी ऑफ 10 to 50 lakhs के बीच में, सो वो करना चाहिए. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट यू नो नाउ when market will drop, you know what happens is that it's not about dropping. वो जब स्टॉक टूटता है और जब रिकवर हो जाता है फिर एक 1.5 साल तक कुछ नहीं होता है स्टॉक. टाइम करेक्शन. सो बहुत प्रॉफिट में होल्ड करना तो बहुत ठीक है, आप प्रॉफिट में. लॉस में करना तो आप उम्मीद पे हो कि रिकवर हो जाएगा. द डेविल इज इन आपका जो अंडर परफॉर्मर है उसको आप क्या कर रहे हो. करेक्ट. फॉर एग्जांपल HDFC बैंक इज इन माय पोर्टफोलियो, सो ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना एकदम ही नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, तो क्या करें उसके साथ. So like if I would be there, if I would feel that my target is to outperform markets and to make money, so first of all we have to decide that am I in love with companies or am I in love with profits. वो बोलते हैं पर हम प्यार कंपनी के साथ कर बैठते हैं. तो क्यों HDFC नहीं बाहर निकल रहा है. क्योंकि शायद मेरे को रिस्क प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं. हाँ नहीं तो आपका प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, देन ऑफ कोर्स यू हैव बेटर कंपनीज देन HDFC बैंक. So somewhere around you have a bit of love of HDFC also, which is not wrong, right? सबको अपना अपना खुद लव तो हो जाता है. तो वहां पे you make sure that for example नहीं चल रहा है तो you will replace. Now बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन कि यार मैंने HDFC कोई भी स्टॉक हो गया, HDFC की बात नहीं करते पर एक कोई भी ए स्टॉक है, ए स्टॉक 100 रुपए पे बेच दिया और मैंने 20 स्टॉक 100 रुपए में लिया. जस्ट एन एग्जांपल. अभी ए स्टॉक अच्छे मार्केट में भी बढ़ेगा पर मेक श्योर कि ये ए स्टॉक बढ़े वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका बी स्टॉक कितना ज्यादा बढ़ता है. सो लेट अस से वी हैड लॉट ऑफ स्वैप्स, सो हम इसको स्वैप बोलते हैं. तो हमने ए स्टॉक निकाल दिया, वो भी बढ़ेगा ही क्योंकि मार्केट अच्छा है, उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, वो भी बढ़ेगा. पर बी स्टॉक अगर उससे बेटर बढ़ता है देन योर विन इज देयर. बिकॉज ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि ये स्टॉक नहीं बढ़ेगा अच्छे मार्केट्स में. एंड इफ यू कैन डू दैट रिप्लेसमेंट, बिलीव मी, आउट परफॉर्मिंग ऑफ बेंचमार्क एंड नॉट हैविंग इमोशंस इज अ वेरी बिग की. एंड ये प्यार में कहाँ घुस जाते हैं अपने को पता ही नहीं चलता है. बट आई थिंक सो दैट कम्स विथ एटलीस्ट सीइंग 2 decades, 1 decade ऑफ नॉन परफॉर्मिंग मार्केट्स. आप मैं पता है माई फेवरेट स्टॉक्स वे यूनिटेक, Reliance Capital, favorite stock in 2008. Reliance Infrastructure, Patel Engineering, Lenco Infratech. बहुत सारी कंपनीज अभी है ही नहीं. And I'm sure when I used to hear stories in Ketan Parekh time, people used to tell कि हमारा हिमाचल future favorite था, Silver Line favorite था, and most of the companies are not in there. So believe me, great stories happens
2% of total Mhm. compounding, but there are times where you have to move in and move out also. Right. There your professional player comes into The the picture. picture. थैंक यू सो मच रोहन. आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल था एंड काफ़ी अच्छा एक स्ट्रैटेजी मिल गया हमको, जहाँ पे हमको ये पता चल गया कि इफ़ यू आर फॉलोइंग क्वांट और यू नॉट फॉलोइंग क्वांट, इमोशन एज एन एलिमेंट इज उसका मार्केट में कोई जगह ही कोई नहीं है. जगह नहीं है, एंड अगर वो निकल जाता तो ऑटोमेटिकली अपना अल्फा जो है वो जनरेट वो होने लग जनरेट जाता है. हो जाता है. थैंक यू सो मच. Well, thank you, had a great time.